محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہ میں پہنچا۔ خبروں کے آغاز سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سی ایم KCR سنگاریڈی مزدوروں کے حق میں سنگاریڈی شعبے کو پرائیویٹ کیے جانے کی کوشش کو ناکام بنانے اور مزدوروں کے حق میں بونس کا اعلان، MLC کے کویتا۔ جلوس محمدی کی تمام تر تیاریاں مکمل، راستے میں معمولی تبدیلی کے ساتھ جلوس کا دوپہر 12 تک اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس اعلیٰ عہدیداران کا میلاد کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ بارکونڈا کے پوچم پہاڑ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ATM مشین کو کاٹ کر 12 لاکھ روپے کا سرقہ، کیا سارقوں کو کسی کا خوف نہیں؟ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ CM KCR سنگاریڈی مزدوروں کے حق میں اپنے شعبے کو پرائیویٹ کیے جانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دیش کے مزدوروں کے حق میں سب سے زیادہ کا بونس کا اعلان کرنے والی پہلی ریاست تلنگانہ، MLC کے کویتا کا بیان۔ CM KCR سنگاریڈی مزدوروں کے حق میں سنگاریڈی ملازمین مزدوروں کی فلاح کے لیے بہت اہمیت دی، MLC کے کویتا کا بیان۔ سنگاریڈی شعبے کو پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کرنے، مزدوروں کی زندگیوں کو برباد ہونے سے انہوں نے وقت سے پہلے بچا لیا۔ اس سازش کو بھی ناکام بناتے ہوئے سنگاریڈی سے ہونے والے فائدوں کو مزدوروں کو 32% حصہ تقسیم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس موقع پر TBGKS سنگم قائدین نے حیدرآباد میں MLC کے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر کے کویتا نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ علیحدہ تلنگانہ جدوجہد میں بنیادی طور پر اہم رول ادا کرنے والے سنگاریڈی مزدوروں کو CM KCR کبھی نہ بھول پائیں گے، ضرورت کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ سنگاریڈی مزدوروں کو سب سے زیادہ بونس دیے جانے کا اعلان صرف تلنگانہ واحد ریاست ہے جو 2014 میں 18% بونس دیے جانے کے باوجود 2022 تک اس بونس کو 30% تک بڑھا کر دیا گیا۔ اب کی بار اس بونس کو 32% میں دیا جانا بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ سنگاریڈی مزدوروں کی فلاح کے لیے BRS پارٹی ہمیشہ کوشاں رہی اور ہمیشہ مزدوروں کی حمایت کرے گی۔ امن کی برقراری اور ہندو بھائیوں کا تہوار گنیش وسرجن کے پیش نظر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر 12 بجے تک اختتام اور جلوس گزرنے والے راستوں میں تبدیلیاں کی گئی اور نوجوانوں کو امن کی برقراری کے لیے سخت ہدایتیں جاری کی گئی۔ امن اجلاس سے میلاد کمیٹی و MIM قائدین کا بیان۔ شہر کے کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں ضلع کلکٹر کی قیادت میں امن کمیٹی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کے علاوہ کمشنر آف پولیس V ستیہ نارائن، دیگر عہدیداران، MIM قائدین، میلاد کمیٹی ذمہ داران کے علاوہ گنیش منڈلی ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر و پولیس کمشنر نے تہواروں امن کے ساتھ بھائی چارگی کے فروغ کے ساتھ منانے کا مشورہ دیا اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے تہواروں کے لیے خصوصی انتظامات پر بات چیت اور امن و امان کی برقراری کے لیے قواعد پر عمل آوری کی ہدایت۔ اس موقع پر میلاد کمیٹی ذمہ داران میں MIM قائدین نے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیاریوں پر مکمل روشنی ڈالی اور بتایا کہ گنیش وسرجن کے پیش نظر امن کی برقراری کے مقصد سے
جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قبل میں 2 بجے دوپہر اختتام پذیر ہوتا تھا، وقت میں تبدیلی کرتے ہوئے 12 بجے دن اختتام پذیر ہوگا، اور اس بار جلوس محمدی احمدی بازار سے سیدھے نہرو پارک پہنچے گا، جبکہ قبل میں بڑے بازار چوراستے سے ہو کر اعظم روڈ سے نہرو پارک پہنچتا تھا۔ میلاد کمیٹی کو مسلم قائدین کی جانب سے نوجوانوں کو بھی خصوصی ہدایتیں دینے کا اظہار کیا۔ వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ ఉన్న వెహికల్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోతాయి. సో వీళ్ళందరూ దిగిపోయి ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ పోలీసులు రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది. సో విగ్రహం పెట్టిన వాళ్ళు నిమజ్జనం చేయడం ఓకే, ఇప్పుడు పోలీసుల సైడ్ నుంచి కానీ రెవెన్యూ వాళ్ళు ఎవరు కూడా రిస్క్ తీసుకోలేరు. ఒక హైట్ అయితే విగ్రహాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు, అక్కడే ఉంచలేరు, దాన్ని మన సైడ్. సో ఏం డిసైడ్ అయ్యారు అంటే లాస్ట్ టైం మనం మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము. సో ఏమైనా హైదరాబాద్ లో కాస్త పోస్ట్పోన్ చేశారు, అలాగే ఏమైనా పోస్ట్పోన్ చేసుకుందామా ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి డిస్కషన్ అయింది. वहाँ मुर्तजा बादशाह पर बहुत लोग वो ये अपना रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब मिलाद नबी का एक जुलूस निकालता है मोहम्मद प्रॉफिट बर्थडे के बारे में, सभी यूथ लोग हजारों के लोग पूरा जुलूस में पास करते हैं। फिर आप 10 बजे को शुरू होकर 12 बजे को खत्म करना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं करना, क्योंकि बच्चों लोग को वो छूटते रहेंगे ऑटोमेटिकली दिन भर बैठेंगे त्योहार, तो अगर 3-4 घंटे ज़्यादा हो जाए, गणेश देख लीजिए, हम बोलते हैं 12 बजे को खत्म हो जाता है टाइम पॉइंट में, नेक्स्ट डे 24 आवर्स। अगर ये मिलाद नबी जुलूस भी अगर बच्चों लोग को थोड़े धीरे धीरे से करेगा तो कम से कम 4-5 घंटे लेट हो जाता है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाता है वही, क्योंकि वो लोग भी बच्चों लोगों को अच्छी तरह संभालना है, ये 1 आवर हाफ एन आवर में खत्म नहीं करना, क्योंकि आजकल मिलाद नबी फेस्टिवल गेनिंग वेरी गुड सिग्निफिकेंस, मतलब सभी लोग ज़्यादा लोग, मैं 4-5 साल 6 साल कर दिया फेस्टिवल, फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर में इतना ज़्यादा हजारों 15,000 आ गए एक जुलूस में, बच्चों लोग बड़े अच्छा पहन के, तो बहुत लेट हो गया, लेकिन उनका दिन है, कोई बात नहीं, कोई बंटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पल्स प्रॉब्लम नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि मिलाद में भी अगर दूसरा है तो वो अलग है, तो ये मिलाद के ऊपर एज ए प्रेसिडेंट जो हुआ हैदराबाद में, लेकिन ऐसे नहीं है, आपको कन्विंस करके में जो प्रयत्न कर रहा है कन्विंस का अगर करेगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट प्री फ्रॉम झगड़ा मतलब గొడవ లేకుండా లేరు నిజామాబాద్ 2006 2007 బోధన్ పెద్ద గొడవ रियासती आईटी वजीर केटीआर के ताउन से रियासत में कई आईटी कंपनियों को कायम करते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। बांसवाड़ा हल्के में पहली बार जॉब मेले का इनेकाद कामयाब होना खुशी की बात है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में पीबीआर मेघा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए जॉब मेले का इफ्तिताह अमल में लाया। इस जॉब मेले में कसीर तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मेले में 70 कंपनियों के जरिए रोजगार के मौके फराहम किए गए। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि इस जॉब मेले से बेरोजगार नौजवान मुस्तफीद हो। रियासती आईटी सनती वजीर केटीआर के ताउन से हजारों सनती अदारों को रियासत में कायम करते हुए रियासत के हजारों बेरोजगारों नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। इस मौके पर डीसीसीबी बैंक चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जॉब मेले में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों को इस मौके पर अपॉइंटमेंट लेटर्स की स्पीकर पोचाराम के हाथों तकसीम अमल में लाई गई।
ఇచ్చాడు. 70 కంపెనీలు వచ్చాయి, ఇది ఇస్తుంది. ఈ 70 కంపెనీలలో వివిధ రకాల ఉద్యోగాలు జరుపుకొని 4,000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కాగితం 4,000 jobs in different companies. SSC పాస్ అయిన కాబట్టి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వరకు చదివినటువంటి యువతి యువకులకు వారి చదువు బట్టి వారి టెస్టులు బట్టి కంపెనీ వాళ్ళు వివిధ కౌంటర్ ఓపెన్ చేశారు. అక్కడ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. 18,000 నుంచి 40,000 వరకు జీతం ఇచ్చేటువంటి శాలరీ జాబులు ఉన్నాయి. ఐటీ జాబులు ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రీ తరఫున జాబులు ఉన్నాయి. మీకు బలవంతంగా లేదు, మీరు దారి చూపించడం కావచ్చు. ఒక సామెత ఉంది, గుర్రానికి దత్తుకైంది, గుర్రానికి దూపైంది. నీళ్ళు చూపించాల్సిన బాధ్యత గుర్రం బాధ్యత ఉంది. నీళ్ళు చూపించిన తర్వాత గుర్రం మీ దాకా చేస్తుంది, అది నోరు మూసుకుందంతో తాగడంతో. वोटर लिस्ट में बिना किसी गलती के सही अंदाज से अमल में लाने, पोलिंग के दौरान नागाहानी बहस मुबाहिसों से दूर, साफ व शफाफ तौर पर इलेक्शन अमल में लाए जाने को मद्देनजर रखते हुए वोटर लिस्ट की तैयारी अमल में लाई जाए। जिला अहदेदारान से रियासती हुकूमत सेक्रेटरी वोटर लिस्ट मुशीर क्रिस्टीना जेट की हिदायत। वोटर लिस्ट में हर फर्द अपना वोट का इस्तेमाल किए जाने के लिए वोटर लिस्ट की तैयारी की जाए। रियासती सेक्रेटरी क्रिस्टीना जेट का जिला अहदेदारान को मशवरा। इस मौके पर इन्होंने अहदेदारान को बताया कि पोलिंग के दौरान कोई भी गड़बड़ न होनी चाहिए, बिना किसी खलल के इलेक्शन जारी रहना चाहिए। वोटर लिस्ट को साफ और शिफाफ तरीके से तकमील में लाने की बात बताई। चारशंबे के दिन जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए निजामाबाद रूरल सेगमेंट के चक्रानपल्ली, मंडल के पटगल, अर्बन सेगमेंट के अरसापल्ली, आर्मू सेगमेंट के माकलूर, मंडल के गुप्ता, बालकोंडा सेगमेंट के पोचमपाट, बोधन हल्के के मुस्तकर सरकारी स्कूलों के पोलिंग बूथों में तनकीद और वोटर लिस्ट में इंदराज के लिए आए दरखास्तों, नाम तसी दरखास्तों की जानकारी हासिल करते हुए इन नामों को रजिस्टरों में लिखे गए तरीके का गौर से जायजा लिया। ऑन ऑफ लाइनों में आई दरखास्तों को BLO से पूछते हुए मुकम्मल जानकारी हासिल की। दूसरी जगहों से मुंतकिल होने वालों को पुराने लिस्ट में नाम की मौजूदगी खारिज किए जाने की तस्दीक कर लेने पर जोर दिया। हर एक को एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रहने की मालूमात करने की बात बताई। दीगर अफराद की जगह मुंतकिली पर पोलिंग अहदेदारों को मुतल्ला करने पर जोर दिया। कुछ वोटरों के नाम के बाजू फोटो को हासिल करते हुए फोटो को अपडेट कराने और दुनिया से चल बसे वोटर के नामों को खारिज करने और इनके खानदान वालों से मालूमात कर लेने की बात बताई। वोटर लिस्ट की आखिरी तैयारी के मौके पर कानूनी हद के दायरे में अमल में लाने की इन्होंने ताकीद की। Other than this PSC wrongful decisions, rest all they have inquired voter list, but they have taken and recommended. They have taken. They have taken. They have been there for the country, but have actually deleted that. after announcement रियासत में बेघर अफराद को गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत घरों की तामीर की मंजूरी अमल में लाई गई। बांसवाड़ा हलका में 400 घरों के तामीर के लिए मंजूरी प्रोसीडिंग कॉपी लेटर्स की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। कामारेड्डी जिला के बिरपुर मंडल में गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत घरों की मंजूरी अमल में लाई गई। 400 घरों की तामीर के लिए रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर वी जतीश पाटिल के हमरा 400 अफराद में मंजूरी प्रोसीडिंग कॉपी लेटर्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अगर कुछ देना हो तो खवातीन के हाथ में देने से इस चीज की सही हिफाजत होती है।
यही बात सोचकर रियासती सीएम केसीआर ने गृह लक्ष्मी स्कीम को खवातीन के नाम पर मंजूर किया जाना ही मुनासिब समझा, ताकि घरों की सही हिफाजत हो सके। आवाम से इन्होंने इस मौके पर आगाह किया कि अगर गृह लक्ष्मी की मंजूरी में कोई धांधली पेश आने पर रास रुजू होने की बात बताए, ताकि ऐसे झूठे दलालों पर क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए एक्शन लिया जा सके और घरों की मंजूरी को मनसूख किया जा सके। पुराने घरों को गृह लक्ष्मी स्कीम अमल में नहीं लाई जाएगी। आजादी के 70 साल बाद भी किसी के नाम घरों की अदम मंजूरी का मकसद किसी ने इनके नाम से घर की मंजूरी के नाम पर रकम हजम कर ली। गृह लक्ष्मी स्कीम सिर्फ मुस्तहक़ीन को मुस्तफिद होने का मौका फराहम करने ओहदेदारों को क़ायदीनों को मशवरा दिया। पुराने घरों को बनाकर बिलों की मंजूरी लाने की कोशिश करने वालों को गुज़िश्ता की तरह अब भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इन्होंने इस मौके पर इंतबाह दिया। పైసలు ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా మీ పేరు ఇస్తేనే భద్రంగా ఉంటుంది. నేను మీకు అందరి విజ్ఞప్తి, ఈ ఊరు ఈ మండలం అంటలేను, జనరల్గా ప్రస్తుతం కాబట్టి చెప్తున్నా, ఎవరైనా ఇల్లు మంజూరు చేస్తామని మీకు మాటిస్తే, ఎవరైనా పైసలు అడిగితే ఒక్క పుట్ట పైసలు కూడా ఇవ్వకండి. ఇంకా 3 లక్షల రూపాయలు ఇల్లు మంజూరు చేస్తూ కొంతమంది దమవుతారు, ఇల్లుని మోపవుతారు కొంతమంది అక్కడక్కడ కొన్ని గ్రామాలలో. ఒక్క రూపాయి కూడా లంచం ఇవ్వకండి. ఒకవేళ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది మాకు తర్వాత, ఆ ఇల్లు కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తాం. నిరుపేదలకు పేదలకు కులం లేదు, మతం లేదు. ఎంతమంది అడుగుతున్నారో వారికి గృహలక్ష్మి కింద మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్క రూపాయి లంచం ఇవ్వద్దు, ఎవరికి పైసలు ఇవ్వద్దు. గృహలక్ష్మి ప్రోగ్రాంలో కూడా గతంలో కట్టినటువంటి పాత ఇళ్లకు మంజూరు చేయబడది, ఇవ్వబడది. కొట్లాడి తెచ్చుకొని స్వాతంత్రం 70 ఏళ్ళు 77 ఏళ్ళు అయింది. ఇంకా ఎందుకు గ్రామాలలో పేదవారు ఇల్లు లేకుంటున్నారు? దానికి కారణం ఏంటంటే పేదవారు చెప్పుకొని పెద్దోళ్ళు తినేసారు. లేనివాడు ఉంటుండేనా? ఇల్లు లేనివాడు ఉన్నాడు, జాగ లేనివాడు ఉన్నాడంటే మాలాంటి వారు దొంగతనం చేసి తోసుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా పేదవారికి ఇల్లు లేదు ఇక్కడ దేశంలో. ఇల్లు వారు ఉద్యోగాలు పోయింది. నేను అంటున్నా ఏంటంటే ఇది చాలా పగడబందిగా అమలు చేయాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలనో ఎవరికి ఆకలి ఉందో వారికి పెట్టాలి. అడ్డవులుగా దోసుక తింటే ఇంకా 100 ఏళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటాం మనం పగడబందిగా. ఎవరైనా పొరపాటు జరిగితే పాత ఇళ్ల మీద బిల్లు. के लक्ष्मण बापूजी के बताए हुए रास्तों पर सीएम केसीआर हुकूमत कायम है। अलायदा तेलंगाना जद्दोजहद के मौके पर सीएम केसीआर और के लक्ष्मण बापूजी की यादों को ताज़ा करते हुए के बापूजी को खराज अकीदत पेश किया गया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। कमरपल्ली मंडल मुस्तखल में के लक्ष्मण बापूजी की 108वीं जयंती तकरीब के मौके पर पद्माशाली संगम की क़यादत में के बापूजी लक्ष्मण मुजस्सिमे के रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों नकाब कुशाई अमल में लाई गई। बाद अज़ान जलसे आम से मुखातिब होते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि लक्ष्मण बापूजी की 108वीं जयंती के मौके पर इनके मुजस्सिमे की नकाब कुशाई मेरे हाथों अमल में लाया जाना बहुत ही खुशी की बात है और मेरी खुशकिस्मती है तेलंगाना एहतजाज के मौके पर के लक्ष्मण बापूजी से ताल्लुकात यादों को ताज़ा किया। बताया कि वो हमेशा हक गोई चाहते थे, हर वो सच बात को रास्त कहते, चाहे सामने वाले को कड़वी क्यों न लगे। तेलंगाना एहतजाज के मौके पर सीएम केसीआर से इनका अटूट रिश्ता रहा। सीएम केसीआर इन्हें हमेशा बापू कहकर बुलाते थे। इन्हें हुकूमत की जानिब से मख्तस किए गए घर को तेलंगाना राष्ट्र समिति के इस्तेमाल के लिए दे दिया था। आंध्रा के मुस्तहिद पसंद कायदीन से इन्होंने दूर रहने और तेलंगाना पसंद कायदीन को सहारा देने में इनका अहम रोल रहा। बालकोंडा हल्के में इनका मुजस्सिमा नक्श करने की मेरी हमेशा ख्वाहिश रही। मेरी वालदा की तबीयत नासाज हॉस्पिटल में है। मैं के बापूजी की जयंती तकरीब में हिस्सा लेने के लिए खुसूसी तौर पर आया हूँ। रियासती वजीर ने अपनी तकरीर में इस बात का इजहार किया। కొన్నిసార్లు తిట్టుబడ్డా ఆయన కూడా కొద్దిగా నాగరిక ముక్కు మీద కోపమే. స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఏదైనా ఉంటే స్ట్రేట్గా మాట్లాడతాడు. ఇక వంకర తింకర వంకటొక్కర వింకర ఏమి ఉండవు.
అయితే ఆయనకు మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా గొప్ప సంబంధం, అది విడదీయరాని సంబంధం. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి వారి గౌరవార్థం వారి కులవృత్తులు మిగిలి ఉన్న కులవృత్తుల వారికి అట్లా అన్ని రకాలుగా సమ్మిళితమైన సంక్షేమం, సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి ఒంటి చేత్తో నడిపించే మునగాడు కేసీఆర్ వల్ల ఈ దేశంలో ప్రభుత్వం. అయితే ఆ రోజుల్లో విషయం ఏంటంటే, నేను కొమర్పల్లి మండల పద్మశాలి సంఘ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. जय तेलंगाना, जय मिलाद कमेटी के हमरा पुलिस अहदेदारान का जायजा इजलास। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इख्तिताम के लिए खुसूसी सियानती इंतजामात। एसीपी किरण कुमार का इजहार। मुसलमानों को पेश की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद के जिम्मेदारान के हमरा महकमा पुलिस के आला अहदेदारों का जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। एसीपी निजामाबाद किरण कुमार ने एसएचओ 1 टाउन विजय बाबू के हमरा इस इजलास में शिरकत करते हुए मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान से तबादले ख्याल किए और कल 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर में निकाले जाने वाले असीमुशान व फकीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुजरने वाले रास्तों के रोड मैप और जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान सदर मिलाद कमेटी निजामाबाद को मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने एसीपी किरण कुमार को बताया कि हर साल की तरह हस्बे रिवायत इस साल भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूली सी रास्ते की तब्दीली के साथ आगाज ठीक सुबह 8 बजे शहर के मरकजी इदारे अल जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी से किया जाएगा। ये जुलूस मोहम्मदी बराह पीला स्कूल मालापल्ली बोधन डॉक्टर समदानी मुस्तैदपुरा से गुजरता हुआ अहमदपुरा कॉलोनी नसीर चौराहे से निजामाबाद होटल मक्का मस्जिद से मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया मस्जिद से खिला रोड से होता हुआ जुबली चौराहे से अहमदी बाजार से बराह एवरग्रीन होटल अहमदी बाजार से होता हुआ नेहरू पार्क पर तकरीबन दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। माबाद उलमा इकराम के खिताबात दुरूद व सलाम के बाद जुलूस का अख्तिताम होगा। साथ ही साथ मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान ने जुलूस में शामिल रहने वाले तमाम शुरा बिलखुसूस नौजवानों को सख्त हिदायत जारी कर दी। डीजे और भारी साउंड सिस्टम बिना साइलेंसर वाली गाड़ियों के साथ जुलूस में शामिल होने पर सख्त इम्तिना रखा है। मस्जिद जुलूस में शामिल किसी भी शख्स बिलखुसूस नौजवानों को गैर मुस्लिम इलाकों में जुलूस की शक्ल में जाने की इजाजत नहीं होगी। सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रजवी व दीगर जिम्मेदारान कमेटी ने किसी भी किस्म की शरारत या गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत वो खुद जिम्मेदार रहे। इस मौके पर एसीपी किरण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर में गणेश उत्सव व ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी के पेश नजर दोनों त्योहारों के पुरअमन इख्तिताम के लिए जिला इंतजामिया व महकमा पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। एसीपी किरण कुमार ने शहर में दोनों तबकात की आवाम से ईद मिलादुन नबी व जुलूस मोहम्मदी और गणेश उत्सव को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाने और अमन सब की बरकरारी और पुरअमन इख्तिताम के लिए अपना ताउन पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में 1 टाउन एसएचओ विजय बाबू सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी मौलाना करीमुद्दीन कमाल नायब सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद मजहर रजा मोहम्मद जमील रजा मुजीब रजा सदर ईदगाह मदीना गुलाम हुसैन रज़वी सैयद साजिद रजा कासिम नायब सदर ईदगाह मदीना अहमद पाशा रज़वी अब्दुल खादर रज़वी सज्जादा नशीन कमाल शाह बयाबान जावेद रजा खान अजहरी हाफिज अय्यूब अली रज़वी हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रज़वी मौलाना शाहिद रजा व दीगर जिम्मेदारान अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद मौजूद थे। मुसलमान भाइयों को मिलाद नबी का मुबारक हो। कल मिलाद नबी का ईद जो है कल सुबह यहाँ पे अपने जगह मनाया जा रहा है।
इसी दिन गणेश का भी प्रोग्राम, गणेश का निमज्जन भी रहने से हम खड़ी बंदोबस्त का इंतज़ाम किए और हमारा अपना मिलाद-उन-नबी कमेटी के साथ 2-3 बार हम बैठ के ये फैसला किए कि 8 बजे जल्दी गैदर होके 12 बजे के अंदर अपना नेहरू पार्क के पास जो मैसेज और स्पीचेस और मीटिंग है वो ख़त्म करने के लिए फैसला कर दिए थे। तो इसमें और अपना मैं मस्जिद कमेटी, अपना मिलाद कमेटी को और वॉलंटियर्स का रिक्वेस्ट ये है कि ये जो भी बच्चे जुलूस के साथ आएंगे उन लोग ज़रा कंट्रोल में रहे जैसा, और वॉलंटियर्स को उन लोगों को संभालना पड़ता और अपना मिलाद कमेटी भी उन लोगों को जब संभाल के ये करना पड़ता। और जो भी मैसेज है, जो भी स्पीचेस है 12 बजे के अंदर खत्म कर दिए तो उसके बाद हमारा बाकी बंदोबस्त हम कंटिन्यू करने के लिए हमको ज़रा सा फॉलो हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब हमको कोऑपरेट करें और हमारा साथ ही रहें। थैंक यू। जो परमिशन है अपने को हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली और ये नेहरू पार्क तक ही दिया गया है और बाकी शहर में कहीं भी बाइक रैली का परमिशन कुछ भी नहीं दिए। और विनायक नगर है, चंद्रशेखर कॉलोनी है, गणेश नगर है, ये जो भी कॉलोनी है अलग अलग इंडिविजुअली आके या इसमें शामिल होना है। हर साल की तरह इस साल भी महकमे पुलिस के आला अफसरान को हम लोग मदऊ करें। हर साल वो जुलूस से 2-3 दिन पहले आते और जुलूस की रूट का भी मुआयना किया जाता और वो लोग हमारा ताउन करेंगे और हम लोग उनका भरपूर ताउन करेंगे, इसका तयक़ुन दिया गया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस साहब भी आए थे और विजय कुमार साहब भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी मामलात पे बात हुई और उन्होंने भी तयक़ुन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह। और शहर की आवाम से बिलखुसूस फिर एक अदबन गुजारिश है कि बहुत ही नॉर्मल और पीसफुली इस जुलूस में शिरकत करें, किसी किस्म का शोर शराबा ना करें ताकि महकमे के पुलिस के आला अफसरान को किसी किस्म का शिकायत का मौका ना मिले। ताकि तारीख़ मिलादत को न भूलें नस्लें, जश्न मिलाद नबी यूँ ही सजाते रहिए। इसके मिज़दाक़ कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, सरकार की पैदाइश का मुबारक दिन है और उसमें तमाम मुसलमान मोहब्बत और ख़ुशी के साथ जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला करते हैं। उसी का अहतमाम और उसी की तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह 8 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरकज़ी इदारा अल-जामिअत रज़विया अनवारुल उलूम से जुलूस का आगाज़ होगा। मैं तमाम मुसलमानान निज़ामाबाद से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो दरजो अपनी खुशी, अपनी महब्बत और अपनी अक़ीदत को लिए हुए जुलूस में शरीक हों और जिन महल्लों से दूरी है जुलूस की, उन महल्ले वालों से अदबन गुजारिश है कि वो रास्ते में आते वक्त नारे ना लगाएं। क्यों? इसलिए कि गैरों का त्यौहार भी है। उस त्यौहार की वजह से ये न महसूस हो कि हमारे करीब आकर लगा रहे हैं, बल्कि आप आइए, जुलूस में शरीक हो जाइए, जुलूस में शरीक होकर अपनी खुशियों का इजहार कीजिए। जैसे भी आप नारे लगाते हों, जो भी कमेटी ने नारे दिए हैं उसको लगाइए। और ख़ास तौर पर गौतम नगर, विनायक नगर और आपके दूसरे महल्ले उस तरफ के जो ज़्यादा दूर हैं, उन महल्ले वाले जब निकलें तो नारे लगाते हुए न निकलें, बल्कि खामोशी के साथ आकर जुलूस में शरीक होकर नारे लगाएं। बालकोंडा के पोचमपाड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को काटकर 12 लाख लूट ले गए। सारिकों को किसी का खौफ नहीं। सारिकों ने एटीएम के सीसी कैमरों की तोड़फोड़। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हल्का असम्बली बालकोंडा के मेंडोरा मंडल पोचम पहाड़ के एसबीआई बैंक ब्रांच के एटीएम मशीन से नामालूम अफराद ने तकरीबन 12 लाख रुपयों का सरका किया। इस मौके पर आरमूर एसीपी जयराम ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि नामालूम अफराद ने देर रात में एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से काटकर 12 लाख रुपये का सरका किया। एसबीआई बैंक मैनेजर बालराज ने मेंडोरा एसआई श्रीनिवास यादव को फोन पर इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तफ्तीश कर रही। सीसी कैमरों को ब्लैक स्प्रे मारा गया। एटीएम के शटर के खुफल को तोड़ा गया। सीसी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया। तहकीकात जारी। पुलिस कमिश्नर ने निर्मल, आदिलाबाद, नांदेड़ में तहकीकात के लिए गाड़ियों की चेकिंग करने की हिदायत दी। महकमा पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही। तमाम अतराफ के मुआवजात में सीसी कैमरों को चेक किया जा रहा। अगर किसी शख्स पर शक व शुबहात हो
अवाम पुलिस को इत्तला दी। సుమారు 3:23 మన వెందోరా ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ గారికి ఫోన్ కాల్ చేశారు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు బాలరాజ్ గారు. ఇమీడియట్గా ఆ బాలరాజ్ గారికి కూడా వాళ్ళు సర్వేలెన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేశారు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదో అటెంప్ట్ జరుగుతున్నది బ్యాంక్ పోచంపాడు బ్రాంచ్ ఏటీఎంలో బ్యాంక్ ఏటీఎం మీద అటాక్ జరుగుతుందని దొంగతనం జరుగుతుందని చెప్పేసి మెసేజ్ రాగానే ఇమీడియట్గా ఆయన మా ఎస్ఐని అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. మా ఎస్ఐ పెట్రోలింగ్ టీం కూడా పంపించి వచ్చారు. అయితే సుమారుగా 3:18 ఇక్కడ ఏటీఎం షట్టర్ని బ్రేక్ చేసి దొంగతనం జరిగింది. ఇలా సుమారుగా 10 లక్షల రూపాయల వరకు క్యాష్ పోయినట్టుగా మేనేజర్ చెప్పారు. ఇంకా టోటల్ ఎగ్జాక్ట్ క్యాష్ ఎంత ఉందనేది వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే గత ఫ్రైడే రోజు వాళ్ళు అమౌంట్ పెట్టారు క్యాష్ చెస్ట్లో. తర్వాత కస్టమర్స్ కొంచెం యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంత అమౌంట్ పోయిందనేది ఎగ్జాక్ట్ వెరిఫై చేసి చెప్తామన్నారు వాళ్ళు. అయితే ఇది ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ గ్యాంగ్ వాళ్ళు చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు దొంగలు ఇక్కడ రాగానే ఫస్ట్ కెమెరాస్ మీద బ్లాక్ స్ప్రే ఒకటి చేయడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళది కన్సర్న్డ్ వెహికల్ మూమెంట్స్, తర్వాత వాళ్ళు చేసిన అక్యూజ్డ్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న కెమెరాస్ ద్వారా పరిశీలిస్తున్నాము. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. వ్యక్తులు ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్నాము. అయితే దీని గురించి అని స్పెషల్గా మన కమిషనర్ గారి ఆదేశం మేరకు మన డీజీపీ ఆఫీస్ నుంచి కూడా పై నుంచి కూడా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు డీజీపీ గారు. మేము స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు చేసిన గ్యాంగ్స్ ఏమున్నాయి, ఇది ఇక్కడ ముందు జరిగిన అఫెన్స్లన్నిటికీ వీటికి వాటి సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం. అయితే ఈ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ను కూడా మనం స్పెషల్గా డాగ్ స్క్వాడ్ని పిలిపించి చేయడం, దాని తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ వాళ్ళని కూడా పిలిపించడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా ఎగ్జామిన్ చేసి ఒక 6 బృందాలు మన సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 6 బృందాలు తయారు చేశాము. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడ ఈ ప్రొఫెషనల్ బ్యాంక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइन पर। सीएम केसीआर संगारेड्डी मजदूरों के हक में संगारेड्डी शोबे को प्राइवेट किए जाने की कोशिश को नाकाम बनाने और मजदूरों के हक में बोनस का ऐलान। एमएलसी के कविता। जुलूसे मोहम्मदी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। रास्ते में मामूली तब्दीली के साथ जुलूस का दोपहर 12 तक इख्तिताम पसीर होगा। पुलिस आला अहदेदारान का मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान के साथ जायजा इजलास। बारकोंडा के पोचम पहाड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को काटकर 12 लाख रुपए का सरखा। क्या सारिकों को किसी का खौफ नहीं? पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये थे खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत।